embryology. So what is the plant embryology? Plant embryology, plant means plant, embryology. Logy word comes from logos means study and embryo. तो इसका मतलब है कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो की स्टडी करना मतलब क्या हुआ? मतलब सिर्फ एम्ब्रियो एम्ब्रियो एज आई टोल्ड यू द लास्ट क्लास कि एम्ब्रियो से ही लाइफ स्टार्ट होती है। द लाइफ स्टार्ट्स द लाइफ ऑफ एनी प्लांट स्टार्ट्स विद व्हाट? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो पहले जर्मिनेट करता है and it makes a whole plant body. अब उस plant body में different sex organs develop होते हैं, उनमें स्पोर्स बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, देन अगेन एम्ब्रियो बनता है. सो दिस इज द साइकिल. So plant embryology is basically concerned with the study of life cycle of plant. Plant embryology में हम basically क्या पढ़ते हैं? We study about the life cycle of plant. So first we should know about the reproductive parts of the flower. देखो what are the parts of flower, what is the morphology of flower. So basically any flower has 4 parts: sepal, petal, stamens and carpels. So these 4 parts, sepal, petal, stamens and carpel, among these 4 parts, the sepal part is the green one. ये आप ये देखो, you can see in this diagram, this green one is the sepal. जो green portion होता है, that is a sepal. जो colorful portion होता है of this yellow color, that is petal. And this is the stamen. And this is the stamen. आपको ये जो दिख रहा है, this is the stamen. ये white color का जो इसमें filament है, yellow इसका androecium है, this is the stamen. And this portion, this green portion is the carpel. ये green portion क्या है? This green portion is the carpel. ये बिल्कुल flask-tipped है. ये जो इसका top portion है, this is the stigma. This pipe-like portion is the style, and lowermost portion is the ovary. And ये इसके नीचे ये जो green portion है, that is a sepal. जो हम flower के बाहर से जो हमें greenish portion दिखता है किसी flower में, that is a sepal. The colorful portion is the petal, and this portion that look like a filament and oval-shaped structure on its top, that is a stamen, and this flask-shaped structure is the ovary. The uppermost portion is the stigma, that between tube-like structure, this is a style, and lowermost this swollen portion is the ovary. So basically there are 4 components of a flower: sepal, petal, stamens and carpels. Sepal and petal is the vegetative part, and stamen and carpel is the reproductive part. So you can see in the diagram, this is the, as I told you, this portion is a stigma, this is the style, and lowermost is the ovary. Ovary, what you can see in the ovary, inside ovary, ovules are present. This is small spherical structure as a ovule. And after fertilization, this ovary turn into fruit and ovules turn into seed. What happens after fertilization? The ovary turns into the fruit and ovules into the seed. Okay, and this is the structure of the stamen. And in the stamen, there are 2 lobes. You can see here there are 2 lobes, and among each lobe there are 2 portions, there are 2 sections, 2 compartments. That each compartment is known as a microsporangium. So total there are 4 microsporangium, because this stamen, basically if you will see morphology point of view से, जब अगर morphology point of view से देखोगे, the uppermost portion is the this is the filament, this is connective, and this is the anther. This upper portion is called anther filament, and इसके बीच का portion is called connective. And this anther has basically 4 compartments, that is known as a microsporangium. ये 4 compartments को हम क्या बोलते हैं? We call it microsporangium. Okay, so these are the basic parts. Now, to begin with this embryology, let me tell you about the life cycle of flowering plants. Flowering plants की life cycle, how does it starts?
तो बेसिकली यहाँ से आप शुरू करिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. दिस वन इज द कार्पेल एंड दिस इज द stamen, and this is the colorful portion is a petal. So sepal and petal is not concerned with the reproduction. Only stamens and carpel is concerned with the reproduction. Stamen is the male reproductive organ and carpel is the female reproductive organ. And you know these stamen and carpels are the modified these are the modified leaves you may call it. ये modified shoot होते हैं, है ना. ये shoot से ही, shoot का portion ही modify होके convert हो जाता है stamen and carpel में. So इनसाइड कॉर्पेल, अब जैसे कॉर्पेल के ये मैंने पोर्शन आपको बता दिए. यू कैन सी हियर इन द डायग्राम. देखिए ये 2 लोब्स हैं और लोब के अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स हैं. दिस पॉलन ग्रेन जर्मिनेट एंड मेक्स मेल गैमेटोफाइट. अच्छा, सबसे पहले एक चीज आपको समझनी है अच्छे से. द स्टेमिन इज नोन एज अ माइक्रोस्पोरोफिल. जैसे अभी आप जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे तो आप वहां पे अपने माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल देखा था. माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है? द ब्रांच ऑन विच देयर अकर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना. ऐसी ब्रांच, ऐसी लीफ जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है. द लीफ ऑन विच on which there occur formation of microsporangium is called microsporophyll. तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो स्टैमिन है यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है. That's why it is called as a microsporophyll and carpel is called as a मेगास्पोरोफिल. और कॉर्पेल को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मेगास्पोरोफिल. तो कॉर्पेल क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. तो स्टैमेन को हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं और कॉर्पेल को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल. तो स्टैमेन में क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम और कॉर्पेल में क्या बनेगा? मेगास्पोरेंजियम. तो यहाँ पे यू कैन सी हियर दिस, ये जो आपका ओव्यूल है, ये ओव्यूल क्या है? ये दिस इज द मेगास्पोरेंजियम. अब इस ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा? मेगास्पोर. ठीक है, मेगास्पोर बनेगा जो कि किसमें डेवलप हो जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट में. मेगास्पोर विल डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, और इसके अंदर क्या बनेगा? एंथर के अंदर, या यू में से स्टैमेन में क्या बनेगा? स्टैमेन के अंदर क्या होगा? देयर अकर फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड देन पॉलन ग्रेन विल डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट. तो पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर. देखो, लेट मी रिवाइज इट अगेन. क्या मैं बाद में इसको और डिटेल में बताती हूँ. यू हैव टू जस्ट नो दैट स्टैमेन इज व्हाट. लेट मी राइट दिस हियर. Your stamen is equivalent to microsporophil. अब इस stamen के अंदर क्या बनेगा? There will occur formation of माइक्रोस्पोरेंजियम. और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर. और माइक्रोस्पोर किसे बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स को. और माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे एंड ये क्या बना देंगे? दे विल मेक मेल गैमेटो. They will make male gametophyte. Did you get it? Stamen is a microsporophyll. Inside microsporophyll there will occur formation of microsporangium, and inside microsporangium there will occur formation of microspore, that is also known as a male pollen grain, and that pollen grain will germinate into the
male gametophyte. And in carpel similarly like stamen, carpel is a megasporophyll, and inside carpel there will occur formation of a megasporangium, and inside megasporangium there will occur formation of megaspore, and that megaspore will develop into the फीमेल गैमेटोफाइट. अब क्या होगा, यहाँ में मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट्स बनेगा और फीमेल गैमेटोफाइट में देयर विल अकर फॉर्मेशन ऑफ अ फीमेल गैमेट. A male and female gamete now they will fuse, they will make zygote, and that zygote will again germinate into the embryo, है ना. तो ये एम्ब्रियो किसके अंदर बन रहा है, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है सीड के अंदर, और वो सीड किससे बन रहा है, ओव्यूल से बन रहा है. ठीक है, तो यही सब चीजें हमें किसमें समझनी है, जो एम्ब्रियोलॉजी है प्लांट्स की, उसमें हम यही चीजें पढ़ते हैं. तो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट. तो जैसा मैंने अभी आपको इससे पहले भी मैं बताने की कोशिश कर रही थी, यू कैन सी हियर what are the parts of and structure stamen का structure कैसा होता है. stamen को microsporophyll भी बोलते हैं, and it has three parts. upper portion is the anther, lower portion is the filament, और इनके बीच का जो connection है anther और filament का, that is called connective. ठीक है. If you will cut the section, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर एंथर में दो लोब हैं. देखो, you can see this left and right lobe, और in each lobe there are two sections, two compartments. तो जब आप इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करोगे, जैसे ये देखो, अगर एंथर को किसी बीच से आप कट करके देखोगे तो इट विल लुक लाइक बटरफ्लाई शेप में आता है, और आपको 4 कंपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे. क्या देखने को मिलेंगे, 4 कंपार्टमेंट्स. ईच कंपार्टमेंट इज नोन एज अ माइक्रोस्पोरेंजियम. हर एक कंपार्टमेंट क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, या दूसरा नाम उसका क्या है, पॉलन सैक. उसका पार्ट क्या है, उस दूसरा नाम क्या है उसका, पॉलन सैक है. अब चाहे आप पॉलन सैक उसे बोलिए, चाहे आप उसको क्या बोलिए, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलिए. हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है बाय प्रोसेस ऑफ मियोसिस. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है, द माइक्रोस्पोर मदर सेल विल डिवाइड by meiotic division and it will make microspore. माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन कहते हैं. तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना. माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है, पॉलन सैक, और माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम क्या है, पॉलन ग्रेन. चाहे आप पॉलन ग्रेन बोलो, चाहे आप माइक्रोस्पोर बोलो, एक ही बात है. सिमिलरली चाहे आप पॉलन सैक बोलो या माइक्रोस्पोरेंजियम बोलो, बोथ आर similar. So to conclude, each anther has a 3 portion, anther, filament and connective. If you will cut the transverse section of anther, we will see 4 compartments. Each compartment is known as a pollen sac or microsporangium. Inside each pollen sac there occur formation of a pollen grain by the process of meiosis, and each pollen grain is also known as a microspore. Now this microspore will germinate and will make the male gametophyte. Male gametophyte के अंदर क्या बनेगा, male gamete. So it was the structure of anther. अब ये जो हमने anther का ट्रांसवर्स सेक्शन करने पे उसमें कई सारे पार्ट्स हमें देखते हैं. मैंने आपको बताया ये 4 सेक्शन, 4 पोर्शंस दिखते हैं, है ना. 4 बटरफ्लाई शेप होता है, 2 बड़े लोब दिखते हैं और 2 छोटे लोब दिखते हैं. तो बेसिकली जब आप किसी एंथर का सेक्शन कट करोगे तो आपको ये एंथर क्या होती है, इसमें कई सारी लेयर्स होती है. ठीक है, एटलीस्ट 3-4 लेयर्स होती हैं. आउटर मोस्ट लेयर इज अ एपिडर्मिस. सबसे बाहर की जो लेयर है, यू कैन सी हियर, ये जो सबसे बाहर वाली लाइन है, दिस इज द एपिडर्मिस. उसे क्या बोलते हैं, we call it एपिडर्मिस. सबसे बाहर की जो लेयर है. इसके बाद 2-3 इसमें मिडिल लेयर्स है. क्या है इसमें, मिडिल लेयर है. 2-3 लेयर्स है मिडिल लेयर. और सबसे अंदर की ओर मिडिल लेयर. इसके बाद एक लेयर है एंडोथेसियम की. मिडिल लेयर के बाद कौन सी लेयर है, देखो, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम.
देखो नहीं देखो, एपिडर्मिस के बाद ये जो मोटी लेयर, एक जो सबसे बाहर की ओर लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो मोटी सी ये लेयर आपको दिख रही है, दिस इज द एंडोथीसियम। कैसे है ये? एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम के बाद 2 से 3 मिडिल लेयर है, एंड सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड टैपेटम। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर, आप ये देखो, ये जो इनर मोस्ट लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज अ टैपेटम। तो जो टैपेटम होता है बेटा, उसका मेन रोल होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। ये जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और ये सेंटर में आपको वेस्कुलर स्ट्रेन दिख रहा है, वेस्कुलर बंडल। तो जब आप किसी यंग एंथर का सेक्शन कट करोगे तो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे। उसमें 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। इनर मोस्ट लेयर इज द टैपेटम। बट जब अगर किसी आप मेच्योर एंथर का सेक्शन कट करोगे तो वहां पे ये सारी ये मिडिल लेयर्स, टैपेटम वगैरह वहां पे खत्म हो, कंज्यूम हो चुकी होती हैं। तो वहां पे बेसिकली आपको ये 2 लेयर मिलेंगी, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, और सारे माइक्रोस्पोर इस तरीके से उसमें फैले हुए दिखेंगे। और जो ये इसकी ओपनिंग है, ये देखो इसका थोड़ा सा ये ब्रेक हो गया है, और ये जो ये ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमियम। क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को? स्टोमियम। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ सकते हो आप, एनी वन ऑफ यू। ये एंथर का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी तो समझ में आ गया ना? or there is any doubt? Yes, ma'am. Okay. Now next is the process of microsporogenesis. अब क्या होगा? Microsporogenesis होगा। देखो, microsporogenesis is the process of formation of a microspore. जेनेसिस का मतलब ही फॉर्मेशन होता है। अगर कहीं पे जेनेसिस वर्ड लिखा है तो इट मींस फॉर्मेशन। मेगास्पोरोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ megaspore. Sporogenesis means formation of spore, because here there are 2 kind of spore, microspore and megaspore. So similarly their method of formation is also called microsporogenesis and megasporogenesis. Okay, now that is the formation of meiosis. So you all know, if you have studied meiosis, that in the process of meiosis there occur formation of 4 cells and chromosome number become half. What are the 2 important feature of the meiosis? Meiosis एंड में एक सेल से 4 सेल बनती है और उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी का जो बॉडी सेल्स हैं उनका क्रोमोसोम नंबर 46 है, लेकिन जो सेक्स सेल्स हैं उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है 23, बिकॉज वो सेक्स सेल किस प्रोसेस से बनती हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। यही रीजन है कि हमारा क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन 46 मेंटेन रहता है ना? हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज ऑलवेज मेंटेन, क्योंकि कोई भी नया जो प्रोजेनी होता है दैट इज वो उसका कैसे उस प्रोड्यूस होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थ्रू द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। तो स्पर्म और एग का क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, इसलिए उनके फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है वो कैसा होता है? दैट इज द डिप्लॉयड। तो यहाँ के भी केस में क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर बनता है वो मियोटिक प्रोसेस से बनता है, उसका क्रोमोसोम कैसा नंबर होता है? हाफ होता है। नाउ दिस इज द वन मेच्योर पॉलन ग्रेन। देखो आपका इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 8, that is palynology. Palynology is the study of pollen grain. ये देखो pollen grain का स्ट्रक्चर है। किसी एक pollen grain में दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं। वन इज अ जनरेटिव न्यूक्लियस, वन इज अ ट्यूब न्यूक्लियस। और इसकी जो वॉल होती है बाहर की ओर, एक्सोथेसियम आउटर वॉल को बोलते हैं और इनर वॉल को एंडोथेसियम होते हैं। जो आउटर वॉल होती है जिसे एक्सोथेसियम कहते हैं, उसमें उसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन प्रिकर्सर से बने होते हैं। स्पोरोपोलिनिन प्रिकर्सर कैसा होता है बेटा? ये बिल्कुल फैट
फैटी इसका नेचर होता है, सो इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर। इसी की वजह से बिकॉज इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, तो इसकी कभी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती, ये कभी सड़ता नहीं है, और दैट इज द रीजन व्हाई pollen grains are preserved for a long period and they acts like a fossil. और एंड व्हाट इज पेलिनोलॉजी? पेलिनोलॉजी में स्टडी ऑफ pollen grain हम क्यों करते हैं? बिकॉज पेलिनोलॉजी का फॉसिल में फॉसिल स्टडी में, पैलियोबॉटनी में बहुत रोल होता है। बहुत पुराने पुराने pollen grains पड़े होते हैं और हम pollen grain की स्टडी करके ये बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन से टाइम में कौन सा प्लांट यहाँ पे रहा होगा, बिकॉज pollen grains do not destroy। और वो क्यों नहीं डिस्ट्रॉय होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन होता है। वो किसका डिपोजिशन होता है? स्पोरोपोलिनिन का, एंड दैट इज आल्सो नोन एज अ pollen kit। एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसका फैटी नेचर है, और आपको पता है कोई भी चीज फैटी है तो वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जैसे आपने कभी डाल के देखा होगा, पानी में तेल डाल दो, तेल की बूंदे अलग होंगी, घी डाल के देखो, घी अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा, बिकॉज द फैट इज अ हाइड्रोफोबिक। वो कैसा है? लिपिड क्या होता है? देखो, लिपिड अगर कभी पढ़ोगे तो उसमें दो तरीके, आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होगे जूलॉजी में, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कुछ में हाइड्रोफिलिक डोमेन भी होता है, हाइड्रोफोबिक डोमेन होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग। हाइड्रोफोबिक मीन्स, जो हाइड्रोफोबिक मीन्स फोबिया, मीन्स पानी से उसको फोबिया है, इट विल गो अवे फ्रॉम वाटर। तो हमेशा देखो, अगर तेल को पानी में डालोगे तो आप देखो वो ड्रॉपलेट्स बना लेती हैं। ड्रॉपलेट्स क्यों बना लेती हैं? क्योंकि जो उसका वाटर हिटिंग पोर्शन है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर होकर के क्या बना लेते हैं? दे मेक सर्कल, दे मेक ड्रॉपलेट्स। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर पानी आए, दे हेट वाटर, वो वाटर को हेट करते हैं। तो उनका जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, लेकिन हाइड्रोफोबिक पोर्शन गोज अवे फ्रॉम द वाटर एंड दे मेक अ ड्रॉपलेट। अच्छा, मैं एक्सोथीसियम एंडोथीसियम गलत नाम ले रही थी। एक्साइन और इंटाइन होता है उसका नाम। एक्साइन, दैट आउटर मोस्ट पोर्शन इज द एक्साइन, इनर मोस्ट पोर्शन इज द इंटाइन। और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है। जो माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस होता है, इट डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू द टू न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और फिर इसके दो पोर्शन हो जाते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। So this is the माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। अब क्या होता है? अब ये जो माइक्रोस्पोर है, pollen grain है, इसके अंदर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होगा? आप ये देखो, ये जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो आपको पता है। ये देखो, ये जो इसका साइटोप्लाज्म है, ये जो वेजिटेटिव सेल का पोर्शन है वो क्या बना देता है? पॉलन ट्यूब। जैसे ये आप पोर्शन देख रहे हो, अब ये पोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस पोर्शन जो वेजिटेटिव सेल है, इट विल कन्वर्ट इनटू द पॉलन ट्यूब। क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। और दोनों ये जो सेल हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ये है, देखो, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है और ये ट्यूब न्यूक्लियस, मतलब वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ही ट्यूब न्यूक्लियस बोल रहे हैं। और यही आगे चल के जो ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये फिर से डिवाइड होकर के दो सेल बना देगा, और उससे क्या बन जाएंगे? दोनों सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मेल गैमेटोफाइट। तो ये देखो, ये एक पॉलन ट्यूब है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, और जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के क्या बना दिए हैं? वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये pollen grain है आपका, एक्साइन, इंटाइन, न्यूक्लियस। देखो, एक से डिवाइड होकर के दो बना रहा है, और जनरेटिव सेल बन गया, वेजिटेटिव सेल बन गया। और अब ये पोर्शन, एक्साइन और इंटाइन का पोर्शन बाहर की ओर रह जाता है, और जो अंदर का साइटोप्लाज्म है वो क्या बना देता है? मेल गैमेटोफाइट। तो इट वाज द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। तो ये इतना हो गया। एंड नाउ मैं अभी केवल आज कार्पेल तक का स्ट्रक्चर बनाऊंगी, बाकी की चीजें कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ सारा पढ़ना ठीक नहीं होगा।
तो यू नो एंड वी आर ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो अगर आप इस टाइमिंग में आपका हमने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ लिया, मेगास्पोरोफिल पढ़ लिया, मेगास्पोरेंजियम पढ़ लिया। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पेल। तो इस कॉर्पेल के क्या क्या पोर्शन है? द अपर मोस्ट पोर्शन इज द रिसेप्टिव पोर्शन, इज दिस इज द स्टिग्मा, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज द स्टाइल, एंड दिस लोअर मोस्ट पोर्शन इज द ओवरी। अब यही ओवरी है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट में कहीं ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होता, वहां पे कहीं फ्रूट नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में केवल ओव्यूल पाया जाता है, और ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड। इसीलिए जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं? नेकेड सीडेड प्लांट। उनका नेकेड सीड, उनका जो सीड होता है वो नेकेड होता है, नंगा होता है, वो फ्रूट के अंदर नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ पे एंजियोस्पर्म में ओवरी का फॉर्मेशन होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है, दिस ओवरी कन्वर्ट्स इनटू द फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू द सीड। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो सैक इज अ 8 सेल्ड स्ट्रक्चर। 8 सेल होती हैं, 2 एग बन में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक एग और सिनर्जिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और 3 एंटीपोडल्स में, और 2 पोलर न्यूक्लियाई, जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यही एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो है। देखो, अब आप एक बेसिक मोटा मोटा अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो कि दिस इज द ओवरी, ओवरी कन्वर्ट होगी फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में, और सीड के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है दैट इज द एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही जब सीड जर्मिनेट, अब एम्ब्रियो सैक है, अब इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? जैसे एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज अ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेगा, स्टाइल से होता हुआ ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएगा। ओव्यूल के अंदर एंटर करके वो क्या करेगा? एग को फर्टिलाइज करेगा। अब वो एग को फर्टिलाइज करने के बाद अब वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो। तो जो सीड के अंदर एम्ब्रियो बनता है वो इसी प्रोसेस से बनता है। अब जब हम सीड की सोइंग करते हैं, सॉइल में डालते हैं, तो क्या होता है? सीड जर्मिनेट करता है और उससे नया प्लांट बनता है। सो दैट इज द होल लाइफ साइकिल। सारे चीजों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एम्ब्रियोलॉजी। तो सबको सारी बातें समझ में आई या कोई डाउट है? Is everything clear or any doubt? नो मैम। सब समझ में आ गया ना? जो शुरू से क्लास ज्वाइन किया होगा उसको तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बाद में भी ज्वाइन किया होगा तो मैंने बहुत बार रिवाइज किया है इसको। टाइम से तुम लोग ज्वाइन किया करो बेटा, तुम लोगों को पढ़ना होता है, लेकिन कोई सिंसियरिटी नहीं है कि हाँ क्लास है तो मैं टाइमली इसको ज्वाइन भी करूं।